हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पॉलिटिकल साइंस मीनिंग एंड स्कोप। तो हियर्स मीनिंग एंड पॉलिटिकल साइंस देयर a first topic. The political science is that a part of social science which is a deal with their foundations of their state and the principle of the government. There is the most important here. The political science is that a part of the social science and there is state of principle of the government. According to J.S. Garner, there is a political begins to end with the state, and similarly, RZ is a better is a word that is the political is a study of a state in their past, present, and future. Here, the political is here a study of their past, present, and future. Horace J. is Luxus is the state is the same, and the view. The ones is the study of political concern. It is with their life on the man and woman is the relations of organized state. Thus, as a social science, political science deal with their as aspect of the individual in society which are related to their activity and organization devoted to seekings of power and the evolution of confessed, and all this is the within on the overall framework of the rules and the law of the and down of the state. There is a meaning of political science. Here is the most important. The next point here is the changing of meaning of political science. What do you mean to the changing means of political science here? The term of politics is derived from the Greek word polis, which mean to the city-state. That is why means of commentators, as you say, rightly is defined to politics. The politics is a term of the state or government. There is a term of the government. However, this is the definition does not be as it there is a meaning of politics as the politics is a deal with the power. There are politics is the deal with their power, and the how the these well is the Arvam's Kalpana is defined to political science is the study of shaping and sharing of the power. There is study of shaping and the sharing of the power. In a word, political deal with the both state and power. There here is both state and power. How the power is the political science deal with is more often and then not be a relatement of power, and since the science is a systematic study of any phenomenon, thought is observation and experiment. It follows that is a political science study the state and power in all their aspects. You will learn more about their state and power. Let is a lesson. There is the most important politics is mainly deal with their is a state and power. There is a state and the power. There is a deal with the government. And here the political science deal with both is empirical fact of the normative issue. The fact are in the dominant of the what is. There is the most important here what is, and value of reference are there is the dominance of what should be. And for example, if you somebody say India is a parliamentary democracy, he or she is making a statement of empirical fact. This what India is today actually is. There is the most important. This is what India is today actually is. But if you are as well to be make a statement like the one that India should be switching over to the presidentialist from a democracy, the statement would be a normatives as one. And the political science is not certified with there is a describing their state of affair. It's want to change to the improve upon them. The empirical is a statement are true or false by the victors of what is observation show to be the case. And the statement is the ethical is more imperatives and which are often said not to be a true or false in a sense to all. The formal statement, such as the propositions of mathematics, are true or false by virtue of their meaning their constituent term of alone. The political philosophy is deal with the formal statement is a political science. Deal with the empirical statement and also evaluate their exciting the political institutions and practice and focus on how to be improve them. दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताना यही चाह रहे थे कि राजनीतिक विज्ञान का जो अर्थ है, कई मानने में अर्थ जो है आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप
राजनीति विज्ञान के अर्थ नहीं जानते हो तो इसका मतलब है जो राजनीति विज्ञान के आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो आपके लिए अधूरा है। कहते हैं राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वो हिस्सा है जो राज्य की स्थापना सरकार सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है सारी थ्योरी जो है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर ही आधारित होती है या राज्य के ऊपर आधारित होती है। इसमें JW गर्ग ने भी बताया था कि राजनीतिक प्रबंधन अंततः राज्य के साथ ही होता है। यानी राजनीति का जो है आरंभ अंततः राज्य के साथ ही होता है। उसी के तरह RG गेस्टेल ने कहा है कि राजनीतिक राज्य के जो है भूत वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम देखें तो जो है पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट की जो होता है हम राज्य के जो है राजनीतिक अध्ययन के अंतर्गत ही लेते हैं। तो इसमें RG गेस्टेल्स ने साफ शब्दों में इस बात को जो है व्याख्या करने की कोशिश किया था। हेरगल्स ने भी लस्की ने भी कहा है कि राजनीतिक के अध्ययन का संबंध मनुष्य के जीवन एवं संगठित राज्य से संबंधित है। यानी राजनीति विज्ञान का यही अर्थ होता है कि ये मनुष्य के जीवन एवं संगठित राज्य से संबंधित होता है। इसलिए समाज विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान समाज में रहने वाले व्यक्तियों के उस पहलू का वर्णन करता है जो उनके क्रियाकलापों और संगठनों से संबंधित होता है और जो राज्य द्वारा बनाए गए नियम तथा कानून के अंतर्गत शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तथा वो मतभेदों को जो है सुलझाना भी चाहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत ही साफ शब्दों में ये बात बताई गई है कि अगर देखा जाए तो राजनीति दो चीज़ों पे डील करती है, तो राज्य पे करती है या सरकार के ऊपर करती है। उसके अंतर्गत जो आता है या तो शक्ति होती है या मतभेद होता है। तो इन्हीं दो के इर्द गिर्द जो है राजनीति विज्ञान घूम रही होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका अर्थ के विषय में क्या है। देखा जाए तो राजनीति विज्ञान का जो है बदलता अर्थ एक क्षेत्र के रूप में, कहते हैं राजनीति शब्द जो है ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। यही कारण है कि उनके जो है विशेषज्ञ ने राजनीति विज्ञान के राज्य या सरकार के संदर्भ में इसको परिभाषित करने की कोशिश किया है। यद्यपि यही परिभाषा राजनीति के लिए जो है पुण्य नहीं है क्योंकि राजनीति का संबंध शक्ति से होती है। लासवेल और जो है कपलान ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा भी था कि यह सत्ता के आकार देने तथा उनमें भागीदारी का अध्ययन होता है। यानी कोई भी सत्ता होता है हम उसको आकार देते हैं और उसके अध्ययनों पर जो है विशेष जोर देते हैं। एक शब्द में कहा जा सकता है कि राजनीतिक राज्य तथा सत्ता दोनों का अध्ययन ही कराता है। यानी राजनीति विज्ञान जिस शक्ति से संबंध रखता है वह प्राय न्याय संगत शक्ति होती है। यानी इस शक्ति में कोई तरह की बुराई नहीं होती है क्योंकि आपको पता है कि राजनीतिक में हर जो है रूल रेगुलेशन एक सिद्धांत सब जो है न्याय संगत के रूप में ही बनाई जाती है। क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान किसी घटना का क्रमबद्ध परीक्षण या अवलोकन के द्वारा अध्ययन करता है उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान राज्य और शक्ति के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है। तो इसमें कुछ दो राय नहीं है। अगर आपको पता ही है कि अगर विज्ञान जो होती है हर घटनाक्रम को क्रमबद्ध जो है इसको अवलोकन ही करती है और जहाँ रिजल्ट हर जगह एक जैसा ही आता है, उसी प्रकार राज्य जो है विज्ञान राज्य जो है शक्तियों के प्रत्येक पहलू का अध्ययन भी उसी प्रकार करती है। इसलिए राजनीति इसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहते हैं अगर हम देखें तो राज्य और सत्ता के बारे में अधिक अध्ययन जो है इस पाठ में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं राजनीति विज्ञान का संबंध जो अनुभावक तत्वों तो नियामक समस्याओं दोनों से ही होती है। वास्तविकता क्या है इसके विषय में हमें जानना अत्यंत रोचक होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वास्तविकता क्या है कि क्षेत्र में आता है तथा मूल्य क्या होना चाहिए तो ये भी बात आता है। तो ये दोनों बातें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या है, क्या होना चाहिए, क्या इसका क्षेत्र होगा। उदाहरणतः अगर हम कोई ये कहता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है तो वह जो है अनुभविक तथ्य की बात कर रहा है। परंतु यदि कोई यह कहता है कि भारत को आध्यात्मिक लोकतंत्र की अपनाना चाहिए तो यह एक नियामक कथन होगा क्योंकि इसमें जो है अपने नियामक कथन दिया है। और वो जो था जो उसने ये कहा कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है तो इसका मतलब उसने अनुभव करके बताया ना। तो दोनों बातों को यहाँ पर जो है आप समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। राजनीतिक विज्ञान केवल क्रियाकलापों का वर्णन से संतुष्ट नहीं है बल्कि यह उसके अच्छा बनना या परिवर्तन करना भी चाहता है। अनुभविक कथन उसी प्रकार सही या गलत हो सकता है जैसे उन्हें अवलोकन कराया जाएगा। यानी मूल्यांकनात्मक कथन से नैतिक अनुभव है जो कभी भी असत्य या गलत नहीं हो सकता है। गणित के साधकों के औपचारिक कथन अपने संगठकों के अर्थ के आधार पर गलत या सही हो सकती है। राजनीतिक दर्शन शास्त्र का संबंध जो है औपचारिक कथन से सदैव होती है और राजनीतिक विज्ञान जो है अनुभविक कथन से संबंध रखता है। देखिए
राजनीतिक विज्ञान जो होता है एक अनुभव होता है। कहते हैं जो व्यक्ति इसमें गया है उसको इस बात की जरूर अनुभव होता है, जरूर उसके क्रियाकलापों को समझ होती है, तभी जो है वो विशेषज्ञ के रूप में देखे जा सकते हैं। और वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं व्यवहार का मूल्यांकन करता है ताकि उन्हें बेहतर बनाया जा सके। राजनीतिक जो होती है एक कहते हैं निजी नहीं होती है, ये सार्वजनिक होती है, क्योंकि आपको किसी व्यक्ति द्वारा चुना गया होता है। तो इसमें जो है हर चीज़ जो होना चाहिए व्यवहारिक रूप से मूल्यांकन होना चाहिए, और राजनीतिक रूप से संस्थाओं को जो है इस बात पे ध्यान भी देने की आवश्यकता रहती है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन प्लान्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। The here systematic study of politics started with the Greek in the 4th century BC. There is a political science starting for here of 4th century BC. The philosophers like Plato and Aristotle's use is a comprehensive sense. Here is the most comprehensive sense. The Aristotles is called to the political is the master of science, mean father of political science. For him, there is a comprehension of not only the institution of state of government but also family property and other social institution. Political for the Greek was all the comprehensive activity. The ancient Greek view about the political science as a mainly ethical. There is the Greeks view of political science here are ethical, in contrast the ancient. The Roman considered to the legal aspect of politics more important for their governments, and during the Middle Age, political science became a branch of religious order to the church, and political authorities was then to the subordinated by the authorities of church. Here the one fact here, normally a lay of man associates the political with the party as politics, but the student of political science we know that the politics is a much larger than that. It is a systematic study of state and power. Friend, there is a most important meaning here. The political science only deal with here a state and power. There is a state and power. As the state is gave to size and become a more complex. So here, political science acquired to realistic of secular and no-religious approach. After the industrial revolution, the role of the state, which may be limited and maintenance law and other, is a providing to defense against the external aggressions and underwent of considerable to the change with the emergence of a new economic system is called capitalism. Here, the new emergence of the new economic system, the here called to the capitalism. Capitalism is here most important here. In the 12th century, after the Second World War, the behaviors is approached after a new dimension of political science. Friend, remember now there is a Second World War is a 1939 to 1945. There is a Second World War. The Second World War is a dimensionally a political science here. The behaviorals is a moment in the American political science in a 1950th century and the 1960th century. Place is a lot of emphasis on the science part of politics. It is one to the model politics after the method followed by the natural science like physics, botany, and etc. This behavioralist as a build a theory indicative from the empirical propositions, and those who follow introductives of method would become to be a conclusions after study, observation on experiment. For example, when some behavioralist is say African American black of the southern United States of America voted for the Democratic Party of United States, they come to the conclusion that African Americans do vote for the Democrats. So here is the most important from the Southern United States of America, USA, and Democratic Party of the United States. There is the American politicals. And this behavior is approach to shifting the focus on it is study from a political institutions and structure for their function. It's a place stress of political activity and the behaviors of man and woman who control these institutions. Here, place stress is here political activity is a behavior of man and woman that is control the institutions, and it's a place the study of idea by the study of the fact, evidence, and behaviors. It is a consider a political activity manifested in a behavior as the true subject of political science.
A political activity may be a form on the usually of contesting of elections. If may be there active of groups of seeking of the adaptation of a particular policy, it is a favor by the government. As a different people purpose is a different interest, such activity tend to generate of disagreement and competitions and conflict. But the destructive of equality of politics is there include physical coherence and a force of their government. It may be and usually does not be involved to the perceives influence and effort to the government to resolve conflicts through their balanced policy decision. The political is also view of the process is whereby of the individuals, group of communities seek to the achieve there is a specific but conflicting goal. The political as a process seeks to be is allocated is a resource. As turn call it's a value authoritative and political as a study of structures, institutions, process and activity recognize their possibility of the use of power. The political study here, a structure, institution, process, activity recognize of possibility for use of power. The Marxist approach is which is derived from to the written to be 19th century. A German philosopher is a Karl Marx. The Karl Marx is a view of political as a study of irreconcilable conflict between the two class have, and those is who have a private property and simple of the rich, and have not those who do not have any private property are similarly to poor. In other words, the is exploiters and the exploited. There is a emancipation of have no not will as a come only through the evolution which is a would be put on the end of the institution of private property. Thus, a change the class society to be a classless society. Here, class society, there are classless society, but politicals as the against to the as a Marxist view, there are another view also the liberal view according to which the politicals are considered as on the effort of calculations and accommodations bearing about the rule of order to the justice. Incidentally, there are Marxist view of political comes as a reaction to the liberal view of politics. यदि बात हम यहाँ पर करें राजनीतिक विज्ञान के विषय का विकास कैसे हुआ, तो कहते हैं अगर देखा जाए तो राजनीति का जो है क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के यूनान के लोगों के आरंभ किया गया था। इसमें प्लेटो और जो अरस्तुस थे जैसे महान दर्शकों ने इसे व्यापक रूप में प्रयोग भी किया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है राजनीति विज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अरस्तुस ने राजनीति विज्ञान के लिए मास्टर विज्ञान भी कहा जाता है, यानी कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस के फादर जो हैं अरस्तुस को ही माना गया है, क्योंकि इन्होंने जो है राजनीति विज्ञान के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा किया, इसलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है अरस्तुस, यानी अरस्तुस को ही फादर ऑफ जो है राजनीति विज्ञान कहा जाता है। इनके अनुसार कहते हैं कि अंतर्गत न केवल राज्य संस्था आते हैं बल्कि इनमें परिवार, संपत्ति और अन्य समाज संगठन को भी सम्मिलित किया गया है। ग्रीक लोगों के लिए राजनीतिक विज्ञान सभी गतिविधियों को सम्मिलित करता है। अगर ग्रीक लोगों की हम बात करें तो राजनीतिक में हर एक पहलू को वो लेके चलते हैं। राजनीतिक विज्ञान के प्रति जो है प्राचीन ग्रीक चिंतक दृष्टिकोण मुख्यतः नैतिक होती है, यानी ये नैतिकता पर आधारित होती है। अब सोचोगे नैतिकता क्या है, तो सत्य के पे कह सकते हो, साधारण लैंग्वेज में सत्य भी कह सकती हो, यानी अच्छाई पे आधारित थी। इसके विपरीत प्राचीन रोमन चिंतक विचारों में राजनीतिक जो थी वैधानिक पक्ष शासन के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। इसका मतलब यही हुआ कि उसमें वैधानिक पक्ष शासन के लिए महत्वपूर्ण था। इसका अर्थ यही लिया जा सकता है कि उस समय जो है पिता के बाद पुत्र को ही शासन का मुख्य अध्यपति समझा जाता था, यानी मध्यकाल में राजनीतिक विज्ञान का चर्च के जो है धार्मिक आदेशों की एक शाखा बन गई थी और उस समय राजनीतिक सत्ता जो है चर्च की प्रभुता के अधीन भी थी। अगर देखा होगा, अगर हिटलर के जीवन के विषय में पढ़ा होगा तो आपको ये बात स्पष्ट याद होगा कि हिटलर जब वहाँ पर जो है अपना राजगद्दी स्थापित किया था तो सबसे पहले उसने चर्च को ही खुश किया था, क्योंकि उसको पता था कि चर्च को अगर वो अपने अधीन कर लेगा तो उसका शासन पद्धति जो है आसान हो जाएगा। इसलिए उसने चर्च पे हर तरह की जो है स्वतंत्रता दे दी थी, तो इस वजह से जो है उसका शासन काफ़ी अच्छा भी चला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ पर अगर देखा जाए अगर मध्यकाल में
तो राजनीति विज्ञान में चर्च का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। सारे राजनीतिक जो थे चर्च के अधीन ही घूमते थे और चर्च ही जो था जो निर्णय ली जाती थी वो चर्च के अधीन ही निर्णय ली जाती थी। यहाँ पर अगर बात हम देखें तो एक जो है आम आदमी राजनीति के प्रायः दलगत राजनीति में ही जोड़ता है, यानी देखा जाए तो एक आदमी जो है राजनीतिक चीज़ों से ही जुड़ा हुआ रहता है। परंतु राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम यह जानते हैं कि राजनीति इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है। यानी राजनीति की अगर आप बात करोगे तो राजनीति हर क्षेत्र में दिखेगा, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो चाहे संसार की क्षेत्र हो, हर जगह आपको राजनीति की विस्तृत जो है रूप देखने को मिलेगा। यह राज्य और शक्ति का जो है क्रमबद्ध अध्ययन कराता है। यानी देखा जाए तो राज्य और उसकी शक्ति का जो है इसमें अध्ययन करने को मिलेगा, क्योंकि राज्य है तो उसकी शक्ति भी जरूर होगी। राज्य के कार्य में विस्तार और जटिलता के साथ साथ राजनीति विज्ञान ने व्यवहारिक और पंथ निरपेक्ष रूप धारण कर लिया है। यानी आज पंथ निरपेक्ष जो है इसका रूप बदल गया है। देखा जाए तो आज राजनीतिक जो है किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है और इसमें जो है बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद राज्य की भूमिका केवल आंतरिक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की ही सीमित थी। लेकिन पूंजीवादी जैसे कि नई अर्थव्यवस्था आने से राज्य में अब बहुत परिवर्तन आ गया है। यानी पूंजीवादी ने उनके विचारधाराओं को जो है बिल्कुल ही बदल के रख दिया। पूंजीवादी ने जो पहले हमारे थे कृषिवादी पे हम चलते थे, आज हम पूंजीवादी के ऊपर अपना जीवन बिता रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि हमें जितना हो सके अपने सामानों को विदेश में संचालित करके हमें जो है पूंजी कमाने के लिए अग्रसर हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। यहाँ पर कहते हैं यह किसी समूह या गतिविधि भी हो सकती है जो किसी नीति विशेष को सरकार द्वारा अपने पक्ष में बनवाना चाहता हो। यानी ये किसी गतिविधियां भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के हित भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपको पता है कि विभिन्न व्यक्तियों के जो है विचारधारा अलग होते हैं, उनके हित भी अलग हो सकते हैं। अंततः इस प्रकार की गतिविधियां जो है मतभेद, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष उत्पन्न करते हैं। तो ये तो राजनीतिक में आम बात होती है कि जहाँ पर आपको जो है गतिविधियां, मतभेद, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष सदैव ही देखने को मिलेगा ही मिलेगा। परंतु राजनीति के एक विशेष गुणों में सरकार द्वारा बल प्रयोग शामिल भी होता है। लेकिन सरकार के पास ये बात बहुत ही जरूरी है कि उनके पास शक्तियां होती है और शक्तियां के द्वारा जो है वो बल प्रयोग करके अपनी बातों को मनवा भी सकते हैं। तो वो जो है कुछ कहा जाए तो एडिशनल इनके पावर होते हैं, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में व्याख्या करेंगे। यदि बात करें हम दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, अगर आपको याद होगा कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक युद्ध ये लड़ा गया था, ठीक है। राजनीति विज्ञान का एक नया रूप ही व्यवहारिकवाद दृष्टिकोण के रूप में उदय हुआ। यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति के बाद जो है राजनीतिक में बिल्कुल ही जो उथल पुथल हो गया था और यहाँ पर जो है व्यवहारिकवादी दृष्टिकोण का रूप का जो है उदय हुआ। अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान के जो है 1950 तथा 1960 के दशक में व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति के जो है वैज्ञानिक पक्ष पर विशेष बल भी दिया गया था। भौतिकी तथा वनस्पति विज्ञान जैसी प्राकृतिक विज्ञान की विधि के अनुसरण वे लोग राजनीति के एक आदर्श नमूना बनाना चाहते थे। यानी अगर जैसे आपको पता ही है कि भौतिक और जो है वनस्पति विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में लिया जाता है, उसी प्रकार से जो है इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को आदर्श नमूना बनाना चाहते थे। यानी आदर्श मूलक जो है विज्ञान बनाने के पक्षगर थे। देखा जाए तो व्यवहारिकता में ये अनुभववाद समस्याओं के प्रेरित एक सिद्धांत का प्रतिपादन सदैव करता है। जो प्रेरक विधि को मानते हैं वो अवलोकन परिषद अध्ययन के बाद ही किसी परिणाम तक ये पहुंच पाते हैं। उदाहरण था जब दक्षिण अमेरिका के अफ्रीका और अमेरिका यानी स्वयं वर्ण निवासियों को जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के मत देते हुए देखा गया, तब इसमें परिणाम पहुंचने की अफ्रीका लोग अमेरिका के काले रंग वाले लोगों को भी मत देते हैं। यानी अगर आप अमेरिका के राजनीतिक पढ़े होंगे तो ये आपको एहसास होगा कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है दोनों गोरे और काले दोनों ही व्यक्ति वोट दिया करते थे। तो इससे ये साबित होता है कि उनको जो है एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो उनको सही रूप में जो है उनको इंसाफ दिलवा सके या उनको बातों को जो है सरकार के समक्ष रख सके। इसलिए ये दोनों ने जो है वोट एक ही रूप में दिया था। तो ये अमेरिका का जो है राजनीति की बात इसे यहाँ पर आती है। कहते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीतिक संस्थाओं एवं ढांचों की गतिविधियों की तरह अपना ध्यान हटाकर उनके कार्य की ओर सदैव केंद्रित किया। इसमें कोई दो राय नहीं है
कि व्यवहारिकवाद दृष्टिकोण से राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे की गतिविधियों की तरफ अपना ध्यान हटाकर कार्य की ओर केंद्रित किया। और यह दृष्टिकोण राजनीतिक गतिविधियों के राजनीतिक संस्थाओं के नियंत्रित करने वाले या तो महिला थे या पुरुष कर्मियों की गतिविधियों, उनके कार्य शैली एवं व्यवहार का अध्ययन करने पर बल दिया गया। यानी देखा जाए तो जो राजनीतिक विज्ञान है वो कहते हैं पुरुषों के और महिलाओं के गतिविधियों और कार्य कौशल व्यवहारों का अध्ययन पर जो है मेनली उन्होंने बल दिया। इसे विचारों के अध्ययन की अपेक्षा तथ्य, साक्ष्यों और व्यवहारों को अध्ययन का स्थान भी दिया गया। वही स्वीकार करते हैं कि व्यवहार के माध्यम से जो राजनीतिक गतिविधियां स्पष्ट होती है वो ही राजनीतिक विज्ञान की एक विषय वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। यानी व्यवहार के माध्यम जो राजनीतिक गतिविधियां स्पष्ट होती है वही जो होती है वो विषय वस्तु के रूप में देखना एक आम बात बन गई। राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ना भी हो सकता है। यानी राजनीति में अगर आप गए हो तो इसमें जो है आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, ये प्रावधान है। इसमें सरकार द्वारा जो है भौतिक बल का प्रयोग को ही सम्मिलित किया गया है। कहते हैं कभी कभी जो है सरकार द्वारा भौतिक बल का भी प्रयोग किया जाता है और ये प्राय देखने को मिलता ही है। कहते हैं सरकार द्वारा बनाई गई संतुलित नीति तथा उसके अभाव को भी राजनीतिक विज्ञान से अपने अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत ही लिया जाता है। यानी सरकार ने जो संतुलित करने के लिए नीति बनाई है वो सारे इसी के अंतर्गत घूमते हैं। राजनीति को ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है जहाँ व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय अपने निर्धारित किंतु जो है विरोध मूलक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास सदैव करते ही रहते हैं। राजनीतिक एक प्रक्रिया के रूप में सूत्रों को अधिकरण पूर्ण निर्धारित करने का सदैव प्रयत्न भी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं राजनीतिक जो है संरचनाओं, संस्थाओं और प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अगर आप राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट हो तो आपको ये साफ शब्दों में समझ होनी चाहिए कि राजनीतिक सदैव जो है संरचनाओं, संस्थाओं, प्रक्रिया और गतिविधि का ही अध्ययन पर बल देता है, संभावना की मान्यता देता है। और 19वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के लेखकों से भी गई मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है कि राजनीति उन दो वर्गों के बीच कभी भी नहीं न समाप्त होने वाले संघर्ष का अध्ययन है, जिसमें एक जो है संपन्न वर्ग होता है और जिसके पास नीति, संपत्ति अथवा अंधात्व, और दूसरा विपक्ष वर्ग है जिसके पास कोई जो है निजी संपत्ति नहीं होता है और निर्धन होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप साधारण शब्दों में जानना चाहोगे तो इसमें यही अर्थ बताने की कोशिश किया गया है कि राजनीतिक विज्ञान जो होता है दो समुदाय के बीच होता है, एक जो अमीर वर्ग होता है और एक जो होता है गरीब वर्ग। कहते हैं अमीर वर्ग जो होता है शासक बनता है और गरीब वर्ग के ऊपर राज्य करता है। ये तो जनरली आपने देखा ही होगा कि अमीर व्यक्ति ही आज राजनीतिक के जो है सत्ता का केंद्र बिंदु बन गए हैं और आम लोग जो होते हैं वो उनको वोटिंग करते हैं, उन्हीं को जिताते हैं और बाद में क्या होता है कि ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं इन्हीं पर राज कर रहे होते हैं। यानी गरीब पे ही राज करना इनका हो जाता है मतलब। तो इसमें कोई दो राय नहीं बताया जा सकता। कहते हैं हम इन दो वर्गों के क्रमशः अगर शोषक तथा शोषित भी कह सकते हैं। यानी देखो एक होगा शोषक, एक होगा शोषित वर्ग। तो इसमें दो राय नहीं माना जा सकता है क्योंकि एक जो होता है शोषण करता है, एक जो होता है शोषित होता है। विपन्न वर्ग का जो उदार केवल आंदोलन द्वारा ही हो सकता है, जिससे निजी संपत्ति जैसे संस्था समाप्त हो जाएगी और जिससे समाज का जो है अंत भी होगा। वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी। परंतु मार्क्सवादी विचारधारा के विपरीत एक ऐसा दृष्टिकोण भी है जिसके उदारवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, जिसके अनुसार राजनीतिक समन्वय तथा समायोजन के मध्य से न्याय और व्यवस्था पर भी आधारित शासन स्थापित करने का प्रयास भी हो सकता है। परंतु संयोग से जो है राजनीतिक मार्क्सवादी विचारधारा और राजनीतिक उदारवादी विचारधारा की प्रक्रिया के रूप में विकसित हुई है। अगर आपने मार्क्सवादी की विचारधारा पढ़े होते तो इस बात का जो है आपको पुण्य ज्ञान भी होता, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा जो थी सबसे अलग थी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज distinction between the political science and politics. There is the most important here. There is a political science and politics. The term of political science and politics are often used interchangeable. There is a interchangeable. However, there are distinctions between the two needs to be understood. Some scholars define politics to be the science and the art of government. Here, some scholars have defined is politics to be their science and art of government. But this is only part of the total explanations of subject of politics. There is a political science. The nowadays their term politics use mean the problems of citizen interacting
with the instrument of political power in one from other. And sometime politics was on still used as a techniques of compromise or the method to be a captured power and return it. There is a two means here, political science and politicals. This according to the many political scientists, the study of political science compares theory, the state concept of the surveillance power from a function on government and making an questions of law and the election, political parties, right and duty of citizens, policy function and study of the welfare activity of state and government. There is the most important here. There is another aspect of the political that need to be a impulsives of politicals may attempt to the empire to political of is a practically of politicals. And here practicing of politics is a different from studying in it. The is a political politics include actually formation of the government, the workings of government and administration law and regulations. It is also include international politics, including matters such as a peace and the war, international trade, and economical order. The protection of the right also. All this is also to compare the subject matter of study of politics. You understand? There is here include international political and include a matters such as a peace and war, international trade, economic order, and protection of the right. And all this is a compared subject to matter study of politics. Well, there is a knowledge of political science as a discipline is acquired through the study. The skill of political politics is required through the politics of manipulations and craftiness are by the exporting caste and religion, lawless as a religion sentiment. Practically, politicals are often described as the dirty game and the corruption process in the common people as a mind. Here is the most important things here. The practically politics is often described as a dirty game and corruption process in the understanding that all people has a mind. But we find that there are hardly any human grouping and societies which are free from politics as a hardly any individual who does not be now the implication of the game of politics. Practically, politics also has a many positive acceptors. In this era of the welfare state, many of positive programs such as removal of untouchability, land reforms, release of the bonded levers, and the provision of the trafficking of human beings as a bigger is a forced labor, and introduction of their minimum wages employment is a generation and programs. Empowerment of the other backward classes are all example of positive aspect of practically politics. The politics refer to the process of actually happening in the society and institution, which a political science refer to the understand in a systematic manner. यदि यहाँ पर हम बात करें राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीतिक में अंतर, देखिए राजनीतिक विज्ञान और केवल राजनीति, तो ये दोनों वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीतिक प्राय एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं और इन दोनों शब्दों के बीच अंतर समझना जरूरी भी है। कुछ विद्वानों ने राजनीति को विज्ञान तथा सरकार की कला भी कहा है, जबकि यह राजनीति विज्ञान की व्याख्या का केवल एक सिर्फ हिस्सा मात्र ही माना जा सकता है। आजकल राजनीतिक शब्द का प्रयोग एक अथवा अनेक रूपों में जनता की समस्याओं को हल करने वाले तंत्र के रूप में होने लगा है। यानी जनता की जितनी भी समस्याएं हैं राजनीतिक नेता ही इसको सलूशन करेंगे, तो इस बात में राजनीतिक कहा जाता है। किसी भी समय में और आज भी शक्ति पाने तथा उसे बनाए रखने की तकनीक को ही राजनीतिक कहा जाता है। यानी राजनीति को देखा जाए तो ये सिर्फ एक सीट के लिए ही संघर्ष होता है। यानी सीट अगर प्राप्त होगा तो उनको पावर प्राप्त होगी, अगर पावर प्राप्त होगा तो वो जनता पर राज करेंगे। तो यही विचारधारा से जो है वो सभी जो है राजनीतिक के में जो है उतरना चाहते हैं और सीट प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं अगर सीट प्राप्त करने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं, चाहे इवन जो है लोगों में लड़ाई भी क्यों ना करवाना पड़ जाए, तो वो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसी के लिए इसको जो है पॉलिटिकल कहा जाता है। कहते हैं अनेकों राजनीति जो वैज्ञानिकों के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन के अंतर्गत राज्य के सिद्धांत, संप्रभुता,
शक्ति की अवधारणा सरकारों का स्वरूप एवं कार्य प्रणाली, कानूनी निर्माण तथा लागू करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। यानी देखा जाए तो इसमें हर चीज़ जो है रूल रेगुलेशन सम्मिलित होती है, चाहे वो सिद्धांत हो, संप्रभुता शक्ति की अवधारणा हो, सरकार का स्वरूप हो या कार्य प्रणाली हो, या कानून का निर्माण हो, लागू करने की प्रक्रिया हो, चुनाव हो, राजनीतिक दल हो, नागरिकों का अधिकार, कर्तव्य, पुलिस की कार्य प्रणाली एवं सरकार की कार्य प्रणाली गतिविधियाँ, सारे कुछ इसमें सम्मिलित होती है। तो इस सारे के सारे जो होते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं जनता पर लागू होती है, जनता पर ही इसका प्रभाव देखने को सदैव मिलता है। राजनीति का एक दूसरा पहलू ये भी है जिसमें समझने की ज़रूरत है। कई बार राजनीति का अर्थ प्रायोगिक राजनीति से लगाया भी गया है कि राजनीतिक जो है एक तरह का प्रायोगिक है, जहाँ पर प्रयोग सदैव होती ही रहती है। राजनीति का प्रयोग राजनीतिक का अध्ययन से भिन्न भी माना गया है। अगर देखा जाए इसका व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का इसमें गठन होती है, सरकार की कार्य प्रणाली होती है, प्रशासन होता है, कानून एवं विधायी कार्य सभी ये आते हैं। इसके अलावा राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जिसमें युद्ध एवं शांति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक व्यवसाय तथा मानव अधिकार की रक्षा भी ये सारे इसी के अंतर्गत आता है। जहाँ राजनीति विज्ञान के एक विषय के रूप में जानकारी अध्ययन से प्राप्त होती है, वही व्यवहारिक अगर राजनीतिक का कौशल राजनीति करके या चालाकी या धूर्तता से अथवा जातिवाद, धर्मवाद, निष्ठावाद, धर्मी भावनाओं के जो है शोषण करने से होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राजनीति का मतलब ही होता है कि ये एक गंदा खेल होता है, जहाँ पर जो है बड़े बड़े नेता जो होते हैं आम जनता पर हर संभव राज्य करने की हर एक धूर्त प्रयासों का जो है कोशिश करते हैं, चाहे वो चालाकी हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे धार्मिक निष्ठा हो या धार्मिक भावनाओं को साथ शोषण करने की बात हो, वो हर संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका दायित्व सिर्फ यही होता है सीट प्राप्त करना। कहते हैं एक बार सीट प्राप्त हो गया तो वो 5 साल तक जो है अपने जीवन जो है सुखमय परिस्थिति में बिता सकते हैं। इसलिए हर कोई राजनीतिक में जो है सीट प्राप्त करने के लिए इवन घर तक भी बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक घर में बेच दूंगा, अगर मुझे विजय प्राप्त हो गई तो मैं न जाने ऐसे 50 घर भी मैं खरीदने के लिए अग्रसर हो सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यही बात सच्चाई भी है, और ये सभी आम आदमी की सोच के में इसको गंदा खेल या भ्रष्ट प्रक्रिया भी कहा जाता है। आम व्यक्ति से अगर पूछोगे तो यही बात वो बताएंगे कि राजनीति एक बहुत ही गंदा होता है, और ये गंदा ही खेल माना गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है। कभी वो इस दल में होते हैं तो कभी उस दल में होते हैं। कहते हैं मुसीबत पड़ते ही सब के सब जो है दूसरे दल में पहुँच जाते हैं, और जैसे वहाँ पर वो दल कमज़ोर पड़ता है तो दूसरे दल के हाथ पकड़ लेते हैं। तो इसमें कोई किसी का भी नहीं है। कहते हैं जिसके पास सत्ता है वही सबका जो है फादर है। परंतु हम जानते हैं कि शायद ही ऐसे मानव समूह समाज में जो राजनीति से बचे हुए हों, शायद ही ऐसे व्यक्ति हो जो राजनीति के खेल को उलझाने या प्रभावों को न जानते हों। कहते हैं व्यवहारवादी राजनीति के कई सकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जो अच्छा करता है तो उसको हम सकारात्मक रूप में ही ले सकते हैं। आज के कार्य प्रणाली युग में इसके अनेक उदाहरण देखने को आपको मिल सकता है, जैसे अदृश्यता निवारण, भूमि सुधार, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, मानव श्रम के जो है विक्रय पर प्रतिबंध, बेकार जो है रोकना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले कार्यक्रम, अन्य पिछड़ी जातियों का जो है सशक्तिकरण आदि। तो ये सारे के सारे अगर आपने देखा होगा तो ये उन रूल रेगुलेशन के नाम है जो राजनीतिक नेताओं द्वारा बनाई गई थी, जिसमें जो है आम गरीबों को जो है शोषण को विरुद्ध ये सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए थे। लेकिन कहा जाए तो ये सिर्फ एक रूल रेगुलेशन भी बनाए गए थे, लेकिन आज भी अगर देखोगे तो बंधुआ मजदूरों की संख्या आज भी उतना ही है जितना पहले थी। कहते हैं मानव श्रम की देखोगे तो मानव श्रम की जो है बेशक कार्य बढ़ गए हैं, लेकिन उनको सही समय पर वेतन नहीं मिलता है। कहते हैं न्यूनतम मजदूरी की निर्धारण बेशक सरकार ने कर दिया है, लेकिन आज भी जो है व्यक्ति जो है न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से भी नीचे जो है पगार प्राप्त करते हैं। तो ये सारे रूल रेगुलेशन सरकार के द्वारा ही बनाई गई थी, जिसमें जो है आम लोगों के संरक्षण करने की वचनबद्धता दी गई थी। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये बातें सिर्फ एक मिथ्या ही सिद्ध हुई है। वास्तविकता में देखा जाए तो आज हर क्षेत्र में आम गरीबों का शोषण हो रहा है, और इसमें अगर पुलिस पे आप जाओगे भी तो इसका कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर पुलिस के पास जाओगे रिपोर्ट बेशक लिख लेंगे आपके
ज़बरदस्ती कहने पर, लेकिन इसमें कोई रिएक्शन नहीं लिया जाएगा। वो दूसरे पार्टी से पैसा लेके ये जो है बातों को तहस नहस करके रख देती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सरकार की तरफ हर रूल रेगुलेशन बनाई गई है, लेकिन इसको सख्ती से रूल रेगुलेशन को लागू नहीं किया जाता है। कहते हैं जो बड़ा है वही सदैव महान होता है। तो यही बात पे यहाँ पर चलता है सभी बातें। कहते हैं राजनीति, समाज तथा संस्थाओं में होने वाली वास्तविक घटनाओं की प्रक्रिया से ये सारी बातें संबंधित है, जिसे राजनीति विज्ञान एक क्रमबद्ध तरीके से समझने का सदैव प्रयास किया जा सकता है। The next topic is scope of political science. Here we shall learn about the scope of political science is term of role of the state, function and government and the relationship with the citizen. The next topic is the role of the state. The term state is a modern sense was the first user Machiavelli is a 1469 to 1527. The Italians is the statesman and the study of state has since remained the focus point to the political scientist. Machiavelli is the most important scientist of the political science. The state consists of four elements here. These are the peoples, the theory of the which is the leaves, the government to the rule and regulate the lives of the peoples, and sovereignty which is the impulse, the unrestricted authority to take a decision and manage its own affair. You will be read there the details about this four element in the second lessons, and the lesson second is the most important for you. The role and the nature of the state has been interpreted differently. The modern Western liberals and thinkings about which you will be study more in the fourth lessons. Abroad there is the commercially is a crisis. The revolution is the Western Europe in the 16th century and become a permanent with the industrial revolution in the 18th century. This revolution is a both into be focused on new economical is a system is called to the capitalism. The capitalism is here mean to the evolution of growth into the focal of new economics. The here is the most important fact. The market is a place where a good and service are sold and both. It is a operate on the basis of demand and supply. There is a operate here a demand and supply. Many people regard it as a self-regulating, self-correcting place. Is a provided there is a no interference by the state. Competition is the chief hallmark of market. Competition is generally is a chief hallmark of the market. The capitalism and market are considered two sides of the same coins. There, capitalism and market are considered here two sides of here a same coin. The social group is a consist of the traders, is a merchant and businessman, and later there is the industrialist, is also known as the bourgeois. Was their major is a beneficiary of this system. The laborers emphasize that the consent of people is the true basis of the state. Earlier laborers think not also considered the state as a necessary evil and am the evil but is necessary for the purpose of protecting the individual from the external and internal enemies. According to the view that government is the best which is the governor the least. In others words, the state should be a policy state and hence the limited one. It should be also be limited in the different sense. As a John Locke, the of famous English liberal philosopher of the 17th centuries. The said to be there is a protest the individually nature right to be life, liberty and property. Here is a one fact, the right of claim by on individually one of the state. Naturally right are those right with the which on the individually is the supposed to has been born. These are so to say the God give a right. More importantly, individually is supposed to have according them even before the state come into the extenses. The important implication the state sign the state has a no role in the creations and grantings of these rights. It cannot take away to the abreast to this right, and by contrast to Marcus is a view about which you will be studying more in the fourth lesson. Not consider the state as a empirical institutions.
It is said that is a throughout of centuries, their state has been to the tools in the hand of the have for exploiting and dominating their have-nots. In the future classless society, like the communist society, their state would be a with away the Gandhian view their state would be justified extensive by cutting off the true slaves of the people. It should be helped the poorest and weakest one. It should be restored to him or her a control over his or her own life and destiny. We welfare state. There is a welfare state here which is the slowly emerged during the 1930th century. Try to the promote the well-being of citizens, especially the poor, the needy of the unemployed and the as it is now to generally agree that is a welfare state exit or promote commons good. So the function of the state have an increasing is a manifold. Here is one fact too. The state is an act of traces of there is a people mean that should be held people as a power and trust for a welfare of the people. It should not be considered people as a helpless subjected but as the co-rulers in a governments. The power refer to the ability of one person affecting the attitude or action to the another. There is the most important here. Power refer to be ability one person affecting to attitude to action to another. I have power over you if I can make you do what you would be not have done otherwise. There is important here power over you if I can make you do what you would be not be have it done to otherwise. But power is not a way exercisely openly. It is a can be exercised in a unseen way as the controlling the agenda. There is a controlling of agenda. However, power can be best exercised when I can convince you about what is good or bad for you. And to that extent, my power over you would be a complete. And this dominance would be a way go to the unchanged. By a power of government, we think of the different separate of government. We think of ministers who have a is a departmentals under them for exercise for power over area of their dominance. There is a bureaucracy and the amorphous structure of governmental administration which has a power over us. It can control our lives and various way by making, administering and the implementing law. The here one thing is to be noted, power does not be lies only in the highly publicized and area of social life, like a government, administration, election, etc. It also exists in a small institutions like a family, etc. Many as a feminist are of the opinion that inside the private world of family man exercise power of dominance over women. There is the most important here. The private world of family is a man exercise power or dominance over women. Hence, it is a very aptly sad even their personal is a political. Another there thing we notice is that there is a distinction is a between to the legitimate and the illegitimate is the power. There can be power which is the considered right of proper. Well, the another may be a improper. There is a dichoist is a power over me is very real because if I do not accomplish with this wishes, I might lose my life is a limbs. But it is a not to be proper power is a generally understood or contrasts to be a power that is a government representatives is a policeman and judge exercise over me and proper power. The court's power is a legitimate power will there is a government as a legitimate and the power of constitutionally is authorities over me is called authority. Authority is a contains the two idea of the power and legitimacy. Authority is that from a power which is the legitimate, it is a power plus of legitimacy. Here's the most important. अगर देखा जाए हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें यही बात स्पष्ट रूप से आती है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कहाँ है,
किस किस क्षेत्रों में जो है राजनीति विज्ञान अपना दबदबा बना रखा है। कहते हैं यहाँ हम राज्य की भूमिका, सरकार की कार्य प्रणाली तथा जनता के साथ इसके संबंधों के राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है कि राज्य की क्या भूमिका हो सकती है। तो हम यहाँ पर जो है सभी की भूमिका के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं राज्य शब्द का पहली बार आधुनिक संदर्भ में जो है प्रयोग इटली के राजनीतिक मैकियावेली ने किया था, जो कि कहते हैं 1469 से लेके यानी 1469 टू 1527 तक जो किया था। उस समय से हर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते समय मुख्य रूप से राज्य का ही अध्ययन करता है। यानी जब से इन्होंने जो है मैकियावेली ने अपना अध्ययन किया, उस समय से लेकर जितने भी राजनीतिज्ञ हुए सब के सब जो है राज्य के ऊपर ही अपना अध्ययन फोकस किया। इन्होंने बताया था कि राज्य के प्रमुख 4 तत्व होते हैं। एक तो जनता होती है, दूसरा भूभाग जहाँ जनता निवास करती है, तीसरा जो होती सरकार जो जनता के लिए कायदे कानून बनाती है, और चौथा देखा जाए संप्रभुता जिसके अंतर्गत निर्माण या मामलों को व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अब इन चारों तत्व के बारे में विस्तार से जो है आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ यही आती है कि राज्य के आधार तथा भूमिका के बारे में विभिन्न धारणाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। कहते हैं आधुनिक पश्चिमी उदारवादी विचारधारा ने, जिसके बारे में हम जो है चौथे चैप्टर में अध्ययन भी करेंगे, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में वर्णनित क्रांति का जो है बढ़ावा दिया गया और 18वीं शताब्दी में यह औद्योगिक क्रांति के रूप में प्रसिद्ध भी हो गई। इन क्रांति ने एक नई आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया जिसे हम पूंजीवादी का नाम से जानते हैं। कहते हैं पूंजीवाद ने अपना जो है मुख्य विचारधारा स्टार्ट कर दिया। पूंजीवादी पहले कहीं भी नहीं थी, लेकिन बाद में जो है पूंजीवादी के रूप में ही लोगों ने अपने आप को विकास कर लिया। तो पूंजीवादी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो एक फैक्ट यहाँ पर आया है। कहते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीदने तथा बेचने वाले स्थान को बाजार कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहा जाए यह मांग और पूर्ति के आधार पर चलाया भी जाता है। तो इसमें ज़रूरी बात सही है कि जितना मांग होगी वैसे ही चलेगा ये। अनेकों लोगों का मानना है कि अगर राज्य का हस्तक्षेप न हो तो यह जो एक जो है स्वयं नियामक यानी स्वयं सुधारक वाला स्थान होगा और प्रतिस्पर्धा इसका जो है मुख्य बिंदु हो जाएगी। यानी पूंजीवाद और बाजार को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे सामाजिक समूह के अंतर्गत व्यापारी, व्यवसायी तथा सौदागर सभी आते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इसमें के अंतर्गत जो है व्यापारी, व्यवसायी और सौदागर ही आते हैं, और फिर भी उद्योगपति भी आते हैं जिन्हें बुजुर्गा वर्ग भी कहा जाता है, जो इस व्यवसाय के मुख्य लाभयोगी भी होते हैं। उदारवादियों का मानना है कि जनता की राय लेना राज्य का मुख्य आधार माना जाता है। आरंभिक उदारवादी विचारकों का कहना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और एक बुराई, परंतु ये जो आवश्यक भी है ताकि व्यक्तियों को बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से बचाया भी जा सकता है। यानी बुराई होने के बावजूद भी जो है इसमें रक्षा की भावना बनी रहती है। कहते हैं इस मत के अनुसार एक अच्छी सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। दूसरे शब्दों में राज्य को एक पुलिस राज्य होना चाहिए, परंतु सीमित होना चाहिए। यह एक दूसरे अर्थ में अगर सीमित होना ही चाहिए, जैसे कि 17वीं शताब्दी में मशहूर अंग्रेजी उदारवादी दार्शनिक जॉन कॉल्क ने कहा कि राज्य को केवल व्यक्तियों की प्राकृतिक अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। तो यही जो है मेन आधार बनाया गया था। एक फैक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर बात आती है कि प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्तियों के जन्म के साथ ही प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक आधार के रूप में इसको देखा भी जा सकता है, इसलिए उन्हें ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार कहते हैं। यानी जो परमात्मा ने जिसको जहाँ जन्म दिया है उसको उसी प्रकार के जो है संपत्ति और अधिकार मिल जाता है। राज्य की उत्पत्ति से पहले व्यक्ति ने इन्हें प्राप्त कर लिया था, क्योंकि राज्य इन अधिकारों को नहीं दिया है, इसलिए वे राज्य इन अधिकारों को छीन भी नहीं सकता है। तो सच्चाई है कि जो किसी को कुछ दे नहीं सकता तो छीनने का अधिकार भी उसके पास नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यही आता है कि व्यक्तियों का जो अधिकार है, जो संपत्ति उसको मिलती है, जो अधिकार दिया जाता है वो जन्मजात ही होती है। तो इसमें राज्य का इसमें कोई तरह का जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम जो आगे मार्क्सवादी के जो दृष्टिकोण होंगे उसके हम आगे चैप्टरों में करेंगे, तो वो चैप्टर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं राज्य एक निष्पक्ष संस्था नहीं है, यानी राज्य देखा जाए तो एक तरफा नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। इस दृष्टिकोण वाले लोगों का मानना है कि सदियों से राज्य धनी लोगों के हाथों में एक हथियार है जिसे गरीबों का शोषण किया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो सच्चाई है। और इस बात को जो है
हम भी मानते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जितने भी राजनीतिक नेता होते हैं सब के सब अमीर दल से ही होते हैं, अमीर घराने से ही होते हैं। गरीब से कोई भी जनता खड़ी नहीं होती है। कहते हैं गरीब का शोषण करने से ही ये अमीर बन जाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दो राय नहीं है। कहते हैं बड़े बड़े लोग जो होते हैं सत्ता पे आसीन होते हैं और आम गरीबों पे उनका जो है दायित्व और जो है अपना प्रभुता बना रखे होते हैं। दूसरी ओर गांधीवादी दृष्टिकोण का मानना है कि स्टॉलशिप की व्यवस्था द्वारा लोगों को अस्तित्व को बचाया जा सकता है और इसके द्वारा जो है निर्धनता पुरुष और स्त्रियों को सहायता भी प्राप्त होनी चाहिए। देखिए, गांधीवाद विचारधारा तो अपनी जगह पर सही थी, लेकिन गांधीवाद विचारधारा को लागू नहीं किया गया। 1930 के दशक में लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, जो अपने नागरिकों को कल्याण, विशेषकर गरीब, बेरोजगार तथा बूढ़े लोगों के हित का जो है अधिक ध्यान रखता है। यह अब प्रायः माना जा रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य आम लोगों के कल्याण को बढ़ावा भी देता है, इसलिए राज्य का कार्य कई गुना आज बढ़ गया है। यानी राज्य का देखा जाए तो दायित्व भी समय के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। एक फैक्ट के अनुसार कहते हैं राज्य जनता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। यानी राज्य जो होता है एक तरह से देखा जाए तो एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसके पास जनता की शक्ति एक ट्रस्ट के रूप में होता है, यानी जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए। यानी जो भी कार्य कहते हैं राजनीतिक नेता करना चाहते हैं वो सब जनता के कल्याण में होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, एक बार जब हम सत्ता पे आसीन हो जाएं तो जनता तो पता नहीं कहाँ चला गया, ये वो कभी सोचते ही नहीं है। सिर्फ अपनी भलाई हो चाहता है उनमें कि उनका कैसे भलाई हो जाए, अगले जगह जो स्थान पे कैसे उनका विजय होगा, इसके सोच में वो लगे रहते हैं। जनता की कभी सोचती नहीं है। अगर जनता का सोचते तो आज जो है देश का ये हाल नहीं हो रहा होता। इसे जनता की शक्ति वहीन विषय नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें शासन में सह शासक समझना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं मानते हैं कि शक्तिहीन ही मानते हैं, इनको जो है सह शासक नहीं मानते हैं। अगर राजनीतिक नेता उनको सह शासक मान लेते तो आज इनकी दुर्दशा कुछ इस तरह नहीं होती। शक्ति का तात्पर्य एक व्यक्ति की उस क्षमता से है जो दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं एवं आचार व्यवहारों को सदैव प्रभावित करती है। मैं आपके ऊपर जो है अधित्व रखता हूँ यदि मैं आपसे वह कार्य कराने में सफल हूँ जो आप अपने आप नहीं करते हैं। परंतु शक्ति का प्रयोग हमेशा ही खुलेआम नहीं होता है। इसका प्रयोग गुप्त रूप से भी किया जा सकता है, जैसे कि कार्यक्रम पर नियंत्रण। यद्यपि शक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग तब माना जाएगा जब मैं आपको मनवा सकूँ और आपके लिए क्या अच्छा तथा क्या बुरा है इस बारे में आप सोच सको। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, तभी शक्ति का प्रयोग होता है। शक्ति का प्रयोग का मतलब दोस्तों यही होता है कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है आप उसको परख सको, यही सबकी सब अच्छाई होती है। इस तरह ये मेरा आप पर पुण्य अध्यापित ऐसे प्रभुता को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी अगर आपको समझ बूझ है तो चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सी जनता जो है लालचों के जो है एक पुटली में आ जाते हैं, जहाँ पर हर एक जो है राजनीतिक नेता उनको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। लालच की जो होती है वो लालच की जो है पिटारा खोलते रहते हैं और उसी लालच के पिटारा में वो लोग फंसते चले जाते हैं। वो कभी विवेक से नहीं सोचते हैं कि इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पे क्या होगा। सरकार की शक्तियों के बारे में अध्ययन करते समय हम सरकार के विपक्ष पक्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम मंत्रियों की बात करते हैं जिसके पास अपने क्षेत्र संबंधी विभाग तथा उससे संबंधित शक्तियां होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता है कि बहुत से मंत्री होते हैं, उनके विभाग होते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो कहते हैं ये अपने विभाग में कभी भी नहीं जाते हैं। अगर कभी चले जाते हैं तो एक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है कि मंत्री जो थे अपने विभाग में जाके वहाँ पर जो है कार्य में कार्यरत व्यक्तियों के सुध ले लिया। अब ये इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो उनका अधिकार था, उनको दायित्व था कि अपने विभाग में जाके अपने कार्यभार को सही सुचारू रूप से चलाएं। तो इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ देने की क्या ज़रूरत था। और ये उनका कर्तव्य था कि 100 साल के बाद वो वहाँ पर जा रहे हैं, अपने जो है कार्यालय में जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है ना। तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि जो हम मंत्रियों की बात करते हैं जिसके पास अपने क्षेत्र संबंधी विभाग होते हैं, उसे संबंधित शक्तियां भी होती हैं। जनता के ऊपर शासन करने के लिए नौकरशाही तथा विशाल सरकारी प्रशासन भी व्यवस्था होता है। सरकार विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधान प्रशासन द्वारा उन्हें हमारे जीवन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सदैव करती है। तो उनका तो नियंत्रण हम पे होती है, लेकिन हमारा नियंत्रण उन पे नहीं होता है, क्योंकि वो कोई ना कोई जो है अपनी रूप रंग बदल लेते हैं। यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि शक्ति का अस्तित्व केवल उत्तर स्तरीय समाजी जीवन से संबंधित लोगों जैसे सरकार,
प्रशासन अथवा चुनावों से है आदि में नहीं दिखाई देती है, बल्कि इसे छोटे स्तर पर परिवार जैसे इकाइयों से भी देखा जा सकता है। नारीवादी आंदोलनकारी का मानना है कि जब पुरुष व्यक्तित्व जीवन के महिलाओं के ऊपर शक्ति अथवा प्रभुता का सदैव प्रयोग करता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। पुरुष जो है अपनी व्यक्तिगत जीवन की महिलाओं के ऊपर जो है हमेशा प्रभुता का प्रयोग करते ही है। अंततः ठीक ही कहा गया है कि व्यक्तिगत भी राजनीतिक हो सकती है। कहते हैं एक अन्य विचारणीय बात यह है कि वैध अवैध शक्ति में भी विभिन्नता देखा गया है। तो वैध शक्ति जो सरकार के रिगार्डिंग रूल कानून के अनुसार होता है, अवैध शक्ति जो इसके विपरीत होता है। कुछ ऐसी ही शक्ति होती है जिसे न्याय संगत अथवा उचित कहा जाता है, परंतु कुछ शक्ति ऐसी भी होती है जिसे न्याय संगत भी कहते हैं अगर एक डकैत की शक्ति जिसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया है वास्तविक है, क्योंकि अगर मैं उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जाऊंगा तो वो मुझे मार भी सकता है, ऐसा शक्ति को जो है न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत सरकारी प्रतिनिधित्व, पुलिसकर्मी या न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को उचित अथवा न्याय संगत भी माना जाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, क्योंकि वो पुलिस है, अधिकारी हैं, ठीक है, न्यायाधीश हैं, वो तो सारे के सारे फैसले जो होते हैं अपनी विचारधाराओं से करते हैं, तो उसको न्याय संगत ही माना जाएगा। ठीक है, डकैत की शक्ति अवैध थी जबकि सरकार की शक्ति वैध होती है। संवैधानिक सत्ताधारी द्वारा प्रयोग की गई शक्ति का सत्ता ही कहते हैं। आज जो अगर देखा जाए तो जो अवैध कार्य होते हैं वो वैध रूप से ही की जाती है, जो गलत होती है उसको न्याय संगत ही किया जाता है। तभी तो कहते हैं इन पे कोई कदम नहीं उठाई जाती है। सत्ता में शक्ति का वैधता दोनों ही नीति होती है, इसलिए सत्ता शक्ति का एक रूप है जो न्याय संगत तथा उचित भी है। कहते हैं यह शक्ति के साथ साथ वैध भी मानी जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। Our next topic is the citizens and government. The government is the most important instrument of the state through which the latter realize it is an object. Through the three organs here, legislatures and executives and the judiciary, and it's a make to law and the rules, implement them to maintenance place of order there is a country and resolve to the classes of interest. It is also try to the ensure territory integrity of unit of country. Modern democratic governments perform many other functions for the development and welfare of citizens and society as a whole. This especially so is the developing countries like our. And the relationship between the citizen and government is a reciprocal. The citizens are member of the state. The state recognizes content rightly of the citizens and turn expect content of duty from them. So far as the rights of the citizens are concerned, they can be divided into three: civil, political, and social. The civil rights are those rights which are necessary for the freedoms and liberty of individually, and that include a right to be life and professional liberties, right to a freedom to speech, expression and the thought, right to own property, right to enter into the contract, right to be equality before the law and equal protection by the law. Equality before law means absence of special privilege of equal protection of law in place of equal should be treated of equally. The political right include the right to be vote and the right to be contest election. Social right include the right to be some degrees of economic welfare and security of the right to be live the life of civilized began to according to the standard prevalent in the society. There is a more important here. It is a primary duty of the citizen to the pay of taxes to government. There is the most important here, the primary duty for tax play, and there should be operate which is the government can avoid it by there is a law and the rules should be held to the preventing disease by the immunization and the keeping the hood is the clean. There should be have a small family to help to be a government check the population growth. There should be a reserve to the public's property help the catching and punishing to anti-social, anti-nation element. The further citizen of different caste, religion, language and reasons should be solved. There is a problem by the understanding and agreement and not by the violent means. In this way, a lot of resource, energy and time of the government can be saved the constructive purpose.
हमारा दूसरा पॉइंट जो है नागरिक और सरकार। देखिए, नागरिक और सरकार क्या है? कहते हैं सरकार जो है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, जिसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्य की पूर्ति भी करता है। अपने तीनों अंग अर्थात व्यवसाय, स्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी ये तीनों जो व्यवस्था होता है, व्यवस्थापालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य से सरकार नियमों और कानूनों का निर्माण करता है और विवादों को जो है निपटारा और शांति में व्यवस्था बनाए रखने का भी कार्य इन्हीं तीनों ढंग से किया जाता है। यह देश की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करने का सदैव प्रयास किया जाता है। देखा जाए आधुनिक लोकतंत्र सरकार नागरिक और समाज कल्याण का विकास के लिए अनेकों अन्य कार्य भी करता है। इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार के द्वारा बहुत से कार्य के जो है शुभ आरंभ भी किया जाता है। ऐसा प्रगति विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है, जैसे कि भारत में एक विकासशील देश है। नागरिक एवं सरकार के बीच संबंध पारंपरिक ही यहाँ पर देखने को मिला है। नागरिक राज्य सदस्य होते हैं और राज्य नागरिकों के अधिकारों को मान्यता भी देता है और इसके बदले नागरिकों को कुछ कर्तव्य की अपेक्षा भी किया जाता है। जहाँ तक नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न है, ये तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है नागरिक, एक है राजनीतिक, एक है एवं सामाजिक। कहते हैं अगर देखा जाए नागरिक तो वो अधिकार हैं जो व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होता है, यानी नागरिक अधिकार वो अधिकार है जो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, समझौता करने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार तथा कानून द्वारा सामान्य सुरक्षा आदि शामिल होता है। तो ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत आता है। बात करें कानून के समक्ष समानता का अर्थ कि सभी को सामान्य समझना तथा विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति सामान्य होता है। राजनीतिक अधिकारों का अभिप्राय मत देने का अधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार से होता है। सामाजिक अधिकार के अंतर्गत जो है आर्थिक कल्याण, सुरक्षा तथा समाज में उपस्थित सम्मान की जिंदगी जीने आदि से अंतर्गत आता है। तो चलिए, कोई भी बात हो, ये सब बात जो है एक दूसरे के विपरीत ही बताई गई है। बात अगर हम करें कानून नजर के सभी व्यक्ति को सामान्य अधिकार, तो कहते हैं कानून के समय सारे व्यक्ति सामान्य अधिकार कहाँ मिला हुआ है? कहते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए जो है वहाँ पर कुर्सी खसका दी जाती है और आम गरीबों के लिए लाठी बरसाई जाती है। तो ये कहाँ से जो है कानून की नज़र में सभी व्यक्ति सामान्य हैं। बात करते हैं सुरक्षा, कल्याण, सुरक्षा और समाज की, तो कहते हैं आए दिन जो है यहाँ पर जो कई तरह के जो है गतिविधियाँ होती रहती है जो देश विरोध के रूप में होती है। तो ये गतिविधियों में जो है मैक्सिमम सरकार के व्यक्ति ही सम्मिलित होते हैं। तो ये सारी बातें मिथ्या रहती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा ये चैप्टर है, हमें इन्हीं बातों को आगे लेके चलना पड़ेगा। उसके पश्चात नागरिक की प्राथमिक कर्तव्य है कि वह सरकार को कर दे, क्योंकि कर देना ही सरकार की आमदनी का रास्ता होता है। आपको क्या लगता है कि सरकार जितनी भी फ्री करती है वो अपने जेब से पैसा देती है? नहीं, क्योंकि आपका जो कर्तव्य है कर देना, उन्हीं कर को बढ़ा चढ़ा के लेने से वो जो है आपकी फ्री की वस्तुओं को सेवा पानी करती हैं। प्रत्येक नागरिक को विधि या नियम का पालन करके जो है सरकार का सहयोग करना चाहिए, प्रतिरक्षण में मदद करना चाहिए ताकि अध्यस्त बीमारियों को रोका जा सके। जनसंख्या विकास को रोकने के लिए छोटा परिवार की परंपरा अपनानी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति रक्षा भी करनी चाहिए और असामाजिक तत्व राष्ट्र के दुश्मनों को जो है पकड़वाने, सजा दिलवाने में मदद भी करना चाहिए। कहते हैं अगर आप असामाजिक तत्वों को पकड़ के भी जेल में भी डलवा दो तो अगले दिन जो है वो सरकार के नेताओं के कारण अगले दिन बाहर फिर से वही गतिविधियाँ करने लग जाती हैं। अलग अलग जाति, धर्म, भाषा एवं क्षेत्र के नागरिकों को अपनी अपनी समस्याओं को समझौता के द्वारा समाधान भी करने की पूरी आज़ादी है। कहते हिंसा द्वारा नहीं, कहते अहिंसा के द्वारा। ऐसा होने पर सरकार अपने साधनों एवं ऊर्जा को बचाकर सकारात्मक कार्य में सदैव लगा सकती है। Our next topic is liberties. The term liberty is derived from the Latin word labor, means of free. Thus, the liberties mean to the freedom. The freedom is the paramount of important for the development of individual as a personality. The historically speaking, the term liberty was initially defined as absence of all the restrictions on the individual. This is known as the negative concept of liberties. Here, the earlier liberalism is a compounded is a negative liberty. John Thomas Mills, there a 19th century English political philosopher, described the restraints as a evil. Mill was especially worried about their restrictions common from the state and society. However, since the
is a live together in a society. Complete absence of distinctions would be neither a possible nor a desirable. Further, different intings of between to the self regarding as a other regarding action is not to be away possible. And here it is been to very apt to the sad that your liberties to swings your arms ending here where maybe nose began. For liberty to be enjoyed by everyone, it should be a responsible or stance. This is a concept of positive liberties, the concept of further mean freedom to be a master of oneself. Horace J. Luxis support this concept and freedom are opportunities which the history has shown to be stimulated to their development of personality. The freedom of many require stands low on the freedom of a some. The latter liberal supporting to the positive liberty. हमारा जो अगला टॉपिक है वह है स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिबर से शब्द से हुआ है, इसे इसको लिबर्टी कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन समय में राजनीतिक जो है चिंतकों का एक दल मानता था कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अर्थ है किसी प्रकार की बाधा न होना। इसे स्वतंत्रता का जो है नकारात्मक अर्थ कहा गया है। इस नकारात्मक चिंतन वाले लोगों का मानना है कि व्यक्तियों के कार्य करने के लिए पुण्य जो है स्वतंत्र होना भी चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल जो एक ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक थे का मानना है कि बाधा का एक बुराई है। ठीक है, बाधा एक बुराई है। मिल रॉस का जो समाज की तरफ से आने वाली बाधाओं को विशेष चिंता किया करते थे। मनुष्य समाज में एक साथ रहता है, इसलिए बाधाओं का बिल्कुल ही नहीं होना संभव है। यानी अगर आप एक साथ रहते हो तो बाधाएं होना कहते हैं असंभव है, तथा रेखा जड़ित में भी होना नहीं है। सकारात्मक चिंता का दल का मानना है कि व्यक्ति को वही तक स्वतंत्र होना चाहिए जहां तक उसकी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता की एक कानूनी सीमा रेखा के बीच ही स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ स्वतंत्रता कानूनी रूप से जो है प्रतिबंधित भी होता है, और इस धारणा का और आगे अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति अपने आप में मालिक है, और इस धारणा को हेरोडल्स जेल्स्की ने समर्थन भी किया था। स्वतंत्रता वह अवसर है जिसके बिना व्यक्तित्व का विकास असंभव है। इतिहास इसका गवाह है, और कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कानून द्वारा जो है सीमित करना भी पड़ता है ताकि अधिक लोगों को स्वतंत्रता का लाभ मिल सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज safeguards of liberty. Safeguards the liberty is the most important here. Declaration of right of the individual in the Constitution is considered as the important safeguard of liberties. This way of government can be prevented from the encroaching upon to the freedom of the people. Impartial judiciary is rightly called to the is a watchdog of liberty, and without is the liberty of their individual would be meaningless. And decentralization of power is another important safety guard of liberty. The history is the witness to the fact of concentration of power has a very often lead to the despotism. The separation of power is the executive and legislative and judiciary as being to separate is the great olive of liberty. Is a must concern. A power should be a check on power. The rule of law or equality is the eyes of the law is also an important safety guard of liberty. This is the blockwork is against discrimination based on the caste, class, color and creed, etc. There is against of discrimination of bulwark. A large measure of the social justice is a diffusion of social and economic privilege is a prerequisite for the liberty. If the privilege of become to the prerogatives of select few, then effective liberty would be denied to be a vast majority. A bell or canif parties is also indispensable for the preservation of liberty. All these institutional safety guard are is indicated of preserve the liberty of citizens and themselves do not post the proud and spirit of preserve its. People should be aware beyond their tools to be ensure that the liberty is not encouraged upon. The internal balance it is willingness it is been to the rightly said it's the price of liberty. उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है स्वतंत्रता की रक्षा।
कहते हैं स्वतंत्रता की सुरक्षा किस प्रकार किया जा सकता है। संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा को स्वतंत्रता का एक प्रमुख रक्षक माना गया है और इसके द्वारा लोगों की स्वतंत्रता को सरकारी हस्तक्षेप से भी बचाया जाता है। यह कहना उचित ही है कि निष्पक्ष न्यायपालिका जो स्वतंत्रता की प्रहरी मानी जाती है। इसके बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थहीन ही माना जा सकता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण भी स्वतंत्रता की एक प्रमुख सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा सकता है। इतिहास में से प्रमाण मिलते भी हैं कि शक्ति जो है केंद्रीकृत निरंकुशता को जन्म सदैव दिया है। कहते हैं अगर देखा जाए तो कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका और न्यायपालिका बीच शक्ति का विभाजन भी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रमुख साधन भी माना गया था। इसमें मॉन्टेस्क्यू ने भी कहा था कि शक्ति का नियंत्रण शक्ति द्वारा ही होना चाहिए, नहीं तो शक्ति का जो है व्यर्थ ही रह जाती है। देखा जाए तो कानून के नियम तथा कानून की दृष्टि में समानता भी स्वतंत्रता की एक रक्षा करती है और इन नियमों से जाति व वर्ग, धर्म एवं रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त हो जाता है। सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समानता से स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। यानी देखा जाए तो सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता से स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के विशेष अधिकारों को जो है दुरुपयोग से बहुसंख्यक वर्ग की स्वतंत्रता की हानि भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है सुसंगठित दलित व्यवस्था और जागरूक राजनीतिक दलों की व्यवस्था से स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। सभी सुरक्षा साधन बेअसर हो जाएंगे यदि नागरिक स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जागरूक नहीं होंगे। सरकार कोई रेगुलेशन बना के आपको सुरक्षा नहीं कर सकती है जब तक आप सुरक्षा के लिए हमेशा जो है सशक्त न रहो। इसलिए लोगों को हमेशा चौकस एवं चौकन रहना चाहिए ताकि कोई भी उसकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण न कर सके। निरंतर सतर्कता ही स्वतंत्रता का मूल्य आधार माना जा सकता है। The next topic is justice and relevance of our citizen and state. The term of justice is derived from the Latin word is a jus, which means to the bond, and thus the word is a justice means to join to the fitting. Justice is the be because it is the reconciles and there is synthesis of political value. The best general definition of the justice is when there are everyone's his hair due, and the first hair accept of justice. When we turn to be about the question of justice, it has other constitutions. We find a number of view and hence is come to concept of distributive justice. And what is a proper way of the distribution of the income or is a social position in the given society. There are two major conceptions of distributive social justice. One involves the notion of merit and the other involved to the need and equality. Here is the merit. The merit here, the first is a conception of the argues that is each of persons as a social position and the material wealth must be decided on the basis of merit. When the people talk of the career and open to talent and equality of opportunity they have to the merit in the view. However, the questions arise as to how to the measure to merit and talent. There is the most important question arise here. The how to the measure to the merit and the talent. The liberals say that is a price that is someone is a command in the free market in the reasonable is the indicators of his here value of other. The socialist is a criticalist or there is a opinion that a market recept and they are often affected by the chance and social background which has nothing to do with the merit. Their next year need and equality. The second conception is a view that is goods, positions, etc. should be is allocated on this base of the persons and the needs. But how to define to the needs? There is a most important question here arrive. There is a defined of needs. Everybody agree on the food, shelter and cloth. There is a primary source. And beyond his there is a no agreement. And colonialism, the Marxism believe that of each is a person should be defined his needs and sufficient resource can be created under two communalisms and to meet all the needs of all individually. However, others are the opinion that a need can be certified by two agencies. There is a welfare state and the market. Some needs can be certified through their welfare state and other begin is allocated through their market. And the next here, equality of opportunity. There is the most important here, equality of opportunity. Equality does not be mean to the identity of the reward to the identity of the treatment.
is here a some reward or treatment to the everybody regardless of the effort and circumstance. For example, there would be no equality if all the students were awarded 60 marks as regardless on the equality of answer. The ideally, those who is the right to the better should be get a higher mark, and this is a compatible with the equality. Like we can, if there is a society, some people have a more income and some have a less, and this is a compatible with the equality. Like views is a on a society, some people have a more income and some have a less. There is an inequality. However, this state of affair does not be voluntary. Equality is provides two conditions are met here: absence of privilege and equality of opportunity. There is a first point here. Absence of privileges is a strengthness of equality. The extension of prevalence also would be a convention is promoted to inequality. This means that no one is given to the facility, opportunity, other more than those given to the others. The privileges is a create a situation and inequality, and when there is a process of harms equality. The second here is equality of opportunity mean to the everybody should be have to same chance to the access public position and office. An example of the worker of equality of opportunities in India is a civil service examination conducted by the Union Public Service Commission, means UPSC. Any Indian graduate from any university of India can be take the examination. The UPSC exam here, civil service examinations. There is all study the university. There is a take of examination. Allied to be a concept, equality opportunity is the equality of starting of conditions. Everybody should be get a chance to at the initially of starting line. Then the race of life could begin. Some would become first and some are second. Other is a word of fail. But this would be not be a violation of equality. Many people are convinced that is equality of conditions can only be achieved when there is historically disadvantaged group like the Dalit and scheduled caste. As a compensated through there is a reservation of job are known as the United States America, and there is affirmative of action. The equality is closely connected to the equality and even 100 treatment. Equality demand like a case to be treated alike, or eventually similar case are to be treated in a similar way. The next year, overall result means communitarian justice. There is other kind of theory of justice that does not be take either merit or need into the account. Is a take into account their overall result. John's rival theories belong to a category. In his book, A Theory of Justice, he agrees that the inequalities in the allocations of good are they permissible if and only if those inequalities work to be benefit of the least well of member of society. In other words, a society having income inequality just if and only there is the inequality benefited their least advantaged member of society. For example, a professor a high salary can be just if only if it is a directly or indirectly benefit so that is a brick layer. And next year, on the other hand, the scholar like Nozick is argues in favor of traditional meaning of justice as a respect for a law of entitlement of independence mean to the establish a conventionally right. According to this theory, individuals have to natural right, especially the right to the property, and this estimate equates to the individually because they are human beings. Nozick say that nobody, not even to the state, can be override to this is an entitlement, and putting simply, Nozick is an agreement and against the schemes of taxations imposed by their welfare state. He thinking that taxations interfere with the right of the individual to be dispose of income as she or he think fit. Taxations on the instance of subtransment of liberty is individual. Justice is a dynamic concept. It has been undergoing to change from to the same time and today. So find the word can be said about the justice. Justice is a concept which keep involving. And the next year, justice and it is a relationship with the liberties and equality.
The 19th century scholar like Lord Acton, their auxiliary of the Tocqueville, is considered liberty and equality is incompatible. They thought that too much of stress and inequalities would lead to the deterioration of liberties. Many later scholars also agree with them and progressive taxation by their welfare as the state was considered. Volatives of liberties of properties on people, however, it is remained as a fact that the proceed of tax when to reward to the financing there is a program to the allowed there are people on the poor, the unemployed, there need to the handicapped and the aged. Agrees circulation of society has made to the possible by which are programs. In this time, a confessed like this and prevalent notions of justice decided that it should be a right mix of liberty and equality. Thus, freedom and equality are two aspects of justice, the ultimate objective of the both freedom and equality of justice. हमारा जो अगला टॉपिक है वो है न्याय तथा राज्यों और नागरिकों के लिए इसकी प्रासंगिकता। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि न्याय शब्द लैटिन शब्द के जड़ से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ ही हुआ बंधन, यानी बंधन जो बांध सकता है और जिसका जो है उसके ऊपर शासन चलता हो। इसलिए न्याय शब्द का अर्थ हुआ जोड़ना। इसलिए कहा जा सकता है कि न्याय स्वतंत्रता समानता जैसे मूल्य को सदैव जोड़ता है तथा इसका संश्लेषण भी करता है। ईवर्कस ने न्याय के राजनीतिक मूल्य का जो है असमंजस तथा संश्लेषक भी कहा है। न्याय की सबसे कहते हैं अवधारणा और वर्णित परिभाषा ये कि सभी जो कुछ मिलना चाहिए, यानी न्याय जस्टिस का अर्थ ही होती है जस्ट यानी बंधन, यानी आपको जो बंधन में बांध दे वही न्याय होता है, यानी न्याय के बंधनों में आप बंध जाते हो। तो न्याय के पहलू की प्रासंगिकता इसी बात पे आधारित था और इसके लिए ईवर्कस ने भी अपनी मूल्य असमंजस को साफ शब्दों में स्पष्ट भी करने की कोशिश किया गया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्याय के पहलू। कहते हैं जब हम न्याय के व्यापक पक्ष को सोचते हैं तो न्याय के कई पहलू सामने आ जाते हैं। इनमें से जो है वितरक न्याय भी एक पहलू है जिसका अर्थ है समाज के प्रतिष्ठित पदों एवं आय की सही वितरण। यानी वितरक न्याय के दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है योग्यता और एक होता है समानता एवं आवश्यकता। यानी अगर न्याय के पहलू पर हम देखें तो ये जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, चाहे वो योग्यता हो, चाहे समानता हो या आवश्यकता हो, तो इन्हीं के इर्द गिर्द जो है न्याय के पहलू घूमते हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है योग्यता। कहते एक पक्ष का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के समाज स्तर और संपत्ति का फैसला उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। यानी इसमें कोई बुराई नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति समाज स्तर के जो है संपत्ति का फैसला उसके योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जब लोग योग्यता के अनुसार जीवन वृत्ति एवं अवसर की समानताओं की बात करते हैं तो उनके मन में योग्यता का एक आधार होता है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि योग्यता और क्षमता को कैसे तय किया जाए। उदारवादियों का मानना है कि मुक्त बाजार में जिसका मूल्य अधिक है वो दूसरे के लिए उतना ही मूल्यवान सदैव होता है। समाजवादी आलोचकों का मत है कि बाजार में स्थिति या आय, भाग्य या सामाजिक परिचय के आधार पर निर्धारित होती है, इसका योग्यता से कोई विशेष संबंध नहीं है। अगर हम बात यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ साफ शब्दों में ये बात आया है कि योग्यता और क्षमा को कैसे तय किया जाए कि सही है, लेकिन उदारवादी का ये बात बिल्कुल ही साफ शब्दों में स्पष्ट था कि मुक्त बाजार में जिसका मूल्य अधिक हो वो अब हम दूसरे के लिए उतना ही मूल्यवान हो तो उसकी उपयोगिता सदैव बढ़ जाती है। यानी मूल्यवान वस्तु हो अगर आपके लिए उपयोगिता हो तो उसका जो है कोई भी कीमत आप देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो कहते हैं उस वस्तु की वो योग्यता था जो आपको पैसा देने के लिए मजबूर कर दिया, तो इसे योग्यता ही कहोगे और क्या कहोगे। अगला जो हमारा टॉपिक है आवश्यकता एवं समानता। कहते हैं दूसरी विचारधारा का मत है कि व्यक्तियों की आवश्यकता की धारा पर वस्तु और प्रतिष्ठा की धारणा होना चाहिए, परंतु आवश्यकता को कैसे स्पष्ट करें। रोटी कपड़ा मकान जैसे आवश्यकता पर सभी सहमत होते हैं क्योंकि ये हमारी प्राथमिक है और इसके बिना हम जो है अपना जीवन यापन करना हमारे लिए संभव नहीं भी रहती है। परंतु इसके अतिरिक्त लोगों में कई सहमति नहीं है, यानी सब लोगों के ये सहमति सिद्ध नहीं हुआ है। मार्क्सवादियों के मत से दूसरे लोगों की सहमति नहीं है। मार्क्सवादियों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण करना चाहिए तथा साम्यवाद के अंतर्गत जो है पर्याप्त साधनों को पैदा किया जा सकता है, यानी हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो है आवश्यकताओं को पैदा कर सकते हैं, जिससे सभी व्यक्तियों की जो है सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकता है।
यद्यपि दूसरे लोगों का मानना है कि आवश्यकताओं की पूर्ति दो संस्थाओं द्वारा की जा सकती है, एक है कल्याणकारी राज्य और दूसरा है बाजार। कहते हैं ये दो चीज़ें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत ही सरल हो जाती है। कुछ ऐसी आवश्यकता भी होती है जिसके कल्याणकारी राज्य पूरा कर सकते हैं तथा दूसरे आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार द्वारा की जा सकती है। अब अगला पॉइंट हमारा जो आता है अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है? कहते हैं ना किसी कार्य के लिए एक अवसर की ज़रूरत होती है, यानी एक मौका। ठीक है, यहाँ पर अवसर का अर्थ होता है मौका। परिश्रमी की पहचान व्यवहार की पहचान की समानता नहीं होती है, अर्थात प्रयास की परिस्थिति को ध्यान दिए बिना प्रत्येक व्यक्ति को जो है बराबर मजदूरी एवं व्यवहार कैसे मिल सकता है। उदाहरण बिना उसके प्रश्न उत्तर को देखे तथा जांचे प्रत्येक विद्यार्थी को 60 नंबर कैसे मिल सकता है। जब तक हम प्रश्न उत्तर को ना देखें, जब तक हम क्वेश्चन को एनालाइज ना करें, तब तक हम किसी भी विद्यार्थी को पूरे मार्क्स देने के लिए हम वचनबद्ध नहीं होते हैं। तो यही बात यहाँ पर आया कि प्रत्येक जो है पुस्तक के बिना जांच के ही हम कैसे जो है 60 मार्क्स दे सकते हैं। इससे साफ शब्दों में ये बात जाहिर होती है कि अगर हम बिना पुस्तक चेक किए ही हम किसी विद्यार्थी को जो है नंबर का आंकलन नहीं कर सकते हैं। अच्छा यही होगा कि जिस विद्यार्थी ने बढ़िया लिखा हो उसे अच्छे अंक मिलने ही चाहिए, क्योंकि जिसने जैसा लिखा है उसी प्रकार से जो है अंक का भी निर्धारण होता है। यह समानता के अनुरूप ही होगा। इसी प्रकार समाज में कुछ लोगों की जो है आमदनी अधिक है तथा कुछ की कम है। ऐसी स्थिति में समानता का उल्लंघन नहीं होता है अगर नीचे लिखे दो शर्त पूरा हो जाए तो। पहला तो शर्त यही होगा विशेष अधिकार का न होना, दूसरा है अवसर की समानता। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की जिसमें कि विशेष अधिकार का न होना है, तो देख विशेष अधिकार का न होने का समानता की शक्ति सदैव मिलती है तथा इसके विपरीत विशेष अधिकार होने पर असमानता को सदैव ही बल मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति को दूसरे की जो है हमें अपेक्षा अधिक अवसर नहीं देना चाहिए। विशेष अधिकार असमानताओं की स्थिति उत्पन्न सदैव कर देती है और तथा इस प्रक्रिया में समानता को हानि सदैव पहुंचती है। अवसर की समानता से तात्पर्य यही होता है कि प्रत्येक व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों या कार्यालयों में एक सामान्य प्रवेश मिले। भारत में अवसर की समानता का सबसे अच्छा उदाहरण है जो है संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, अगर वहाँ देखा जाए तो हर विद्यार्थी को जो है पार्टिसिपेट करने की वही अवसर होती है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से या जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन पास किया हो उसको बराबर मौका दिया जाता है। यानी जो लोग सेवा की परीक्षा करता हो, भारत की कोई भी स्नातक चाहे उसने किसी भी विद्यालय से प्राप्त किया हो, इस परीक्षा में बैठने की पुण्य अधिकारी है। इसका मतलब इसमें ये साफ शब्दों में देखा जा सकता है कि समानता का यहाँ पर बिल्कुल जो है ख्याल दिया गया है। यानी एक ऐसा ही लोक सेवा संघ है जिसमें सारी जो होती है, जिसमें हम यूपीएससी के एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो अवसर की समानता की अवधारणा को शर्तों की समानता जुड़ी हुई होती है। यानी अवसर यानी जो है मौका, समानता की अवधारणा शर्तों की कुछ समानताओं से जुड़ी होती है। किसी भी दौर से प्रत्येक व्यक्तियों को आरंभ स्थान पर होने का सामान्य अवसर सदैव मिलता है। कहते हैं उसके पश्चात जीवन की दौड़ आरंभ होती है और इस दौर में कुछ प्रथम स्थान पर आएंगे और कुछ द्वितीय स्थान पर भी होंगे और कुछ जो है असफल भी होंगे। क्योंकि कहते हैं अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो जीवन में हर तरह के पड़ाव जो है हमें देखने को मिलता ही है। जो इन पड़ावों से अलग हो जाते हैं शायद उनके जीवन का जो है आधार नहीं बन पाता है, परंतु यह समानता का उल्लंघन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की विश्वास है कि शर्तों की समानता को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रारंभ से जो है पिछड़े वर्गों जैसे दलित और अनुसूचित जातियों को रोजगार में आरक्षण देकर क्षतिपूर्ति की जाए, जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई कहा जा सकता है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इन सभी जो है चीज़ों पर ध्यान दी जाती है। सामान्य शब्द को जो है समता से भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि सामान्य व्यवहार। निरपेक्षता के अंतर्गत एक जैसे मामलों को सामान्य रूप से देखा भी जा सकता है, अर्थात प्रासंगिक समान मामलों के सामान्य तरीकों से देखना भी ही होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संपूर्ण न्याय यानी पुनर्विवेचन न्याय। कहते हैं न्याय के सिद्धांत का एक और पक्ष है जो योग्यता तथा आवश्यकता दोनों की जो है स्वीकार करता है। यह पक्ष समस्त परिणामों को स्वीकार करता है। जॉन रायल्स का सिद्धांत इस वर्ग के अंतर्गत ही आता है। वो अपनी पुस्तक न्याय के सिद्धांत में लिखते हैं कि वस्तुओं के निर्धारण संबंधी असमानताएं उचित होती है यदि वह असमानताएं आज के पिछड़े समुदाय के हितों में कार्य कर रही हो तो। उदाहरण के लिए एक प्रोफेसर का उच्च वेतन न्याय उचित ही है अगर वह अप्रत्यक्ष रूप से पिछड़े सदस्यों के लाभ पहुँचाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को
लाभ पहुंचाता है तो वो उसके लिए जो है न्याय उचित ही माना जाता है। जैसे कि मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक भी पहुंचाने का जो है प्रण लेना है। साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करके सेव भी करना है। तो इन सभी बातों पर आपको ध्यान भी देना है। बात अगर हम करें दूसरी तरफ, नैतिक्स जैसे पर जो है विद्यमान न्याय के प्रासंगिक अर्थ का समर्थन भी करते हैं, जो कानून और अधिकार का आदर भी करता है और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों को संपत्ति रखने के अधिकार जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक मानव है। नैतिक का मानना है कि राज्य इस अधिकार को नहीं छीन सकता क्योंकि ये जो है जन्मजात हमें प्राप्त होती है। जो जन्मजात प्राप्त होती है उसको राज्य को छीनने का कोई अधिकार नहीं कहा जा सकता। कहते हैं नैतिक द्वारा राज्य द्वारा अधिक कर वसूल जाने के खिलाफ है। उनका कहना है कि व्यक्तियों को अपनी इच्छा से आमदनी को खर्च करने के अधिकार में कर बाधा उत्पन्न करती है और जो है सब व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कर वसूल के जो है एक बाधक के रूप में देखा जा सकता है। न्याय एक परिवर्तनशील धारणा है। इसमें जो है प्राचीन समय से लेकर अब तक जो है बदलाव आ रहा है, इसलिए न्याय के बारे में अंतिम शब्द कहना कठिन है। न्याय एक ऐसी धारणा है जो निरंतर विकसित होती ही रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है न्याय तथा इसका स्वतंत्रता समानता के साथ संबंध। इसमें लॉर्ड टेक्जन और लेली किशोर डी टेक्वॉलिस जैसे 19वीं सदी के विद्वानों का मानना है कि स्वतंत्रता की समानता असंगत है। इसका सोचना है कि समानता के ऊपर विशेष बल देने से स्वतंत्रता का महत्व कम हो जाता है। बाद के कुछ विद्वानों का भी यही मानना था। कल्याणकारी राज्य द्वारा प्रगतिशील कर वसूल को संपत्ति वाले व्यक्तियों जो है स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जा सकता है, चाहे वास्तव में कर द्वारा प्राप्त धन जो है गरीबी, बेरोजगारी, जरूरतमंद विकलांगों तथा बूढ़े लोगों की इसे सुधारने वाली योजनाओं में लगाया जाता हो। इन योजनाओं के द्वारा जो है समानतावादी समाज की स्थापना भी सदैव हो सकती है। परंपरा विरोधी स्थिति में उस समय की न्याय व्यवस्था तय करती भी है। स्वतंत्रता का जो है समानता का उचित मिश्रण क्या होगा? अंततः स्वतंत्रता का समानता न्याय दो धारणाओं में सदैव बटी रहेगी। एक तो होगा स्वतंत्रता और एक होगा समानता का उद्देश्य और न्याय की प्रणाली। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे।